Hello, the fourth year students of MN Homeopathic Medical College. We are discussing from the chronic disease of Hahnemann, and in the previous lecture we have discussed about the chronic disease of Hahnemann, psychosis from chronic disease, and today we will discuss about syphilis, which is written in the chronic disease of Hahnemann. So the book, the chronic disease, their peculiar nature and homeopathic cure. इस किताब में हैनीमैन ने मियाज़म के बारे में और मियाज़म के आविष्कार क्यों हुआ, कौन सा कारण था जो उन्होंने मियाज़म के ऊपर स्टडी किया, आविष्कार किया, और नेचर ऑफ द क्रोनिक डिजीज़ क्या होता है, क्योर क्या होता है, साइकोसिस, सिफिलिस और एंड सोरा क्या होता है, और बहुत सारे मेडिसिन के सिम्टम्स जो है ये दिया है. एंड इट इज़ एन यूनिक बुक इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ द मेडिसिन. So this is a very important chapter for us, and we will discuss about this syphilis. But my motto is that we have to read this syphilis from Hahnemann's chronic disease, as because when we discuss about miasm, there are a lot of things to discuss. There are many things which we need to clarify. There are many things we need to understand. लेकिन इस लेक्चर में मैं इतना बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन, अंडरस्टैंडिंग या क्लैरिफिकेशन में नहीं जानना चाहता हूँ. कारण क्या है कि इस लेक्चर का मोटो बस ये है कि हम लोग हैनीमैन अपने क्रोनिक डिजीज में क्या लिखा है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं, और एग्जैक्टली हैनीमैन ने क्रोनिक डिजीज़ में सिफिलिस के बारे में क्या लिखा है तो उनका राइटिंग से हम लोग डायरेक्टली सिर्फ पढ़ना चाहते हैं. तो इसलिए लेट अस स्टार्ट द सिफिलिस फ्रॉम हैनीमैन्स क्रोनिक डिजीज़. Okay, so let's start about syphilis from Hahnemann's chronic disease. Now, from the very beginning, I have taken the photograph directly from the book so that we can have a very easy conversation and easy understanding. It is written that the second chronic miasma, which is more widely spread than the fig-wort disease. So the first chronic miasma which was written in this chronic disease was psychosis, and it is known as a fig-wort disease, and which for 3.5 now 4 centuries has been the source of many other chronic ailments, is the miasm of the venereal disease proper, the Chancre disease, the syphilis. So this is a very very important venereal disease proper, which we must note this. हैनीमैन ने, अगर कोई क्वेश्चन हो कि हैनीमैन ने किस मियाज़म को वेनरल डिजीज़ प्रॉपर बोला है, इज़ द मियाज़म ऑफ द वेनरल डिजीज़ प्रॉपर, दैट इज़ द सिफिलिस. इसको दूसरे भाषा में उन्होंने शैंकर डिजीज़ भी बोला है. दिस डिजीज़ ओनली कॉजेज डिफ़िकल्टीज इन इट्स क्योर if it is entangled, complicated with sora that has been already far developed. With psychosis it is complicated but rarely, but then usually at the same time with sora. तो ये देखा जाता है ये जो सिफिलिस है ये ऑफन सोरा के साथ कॉम्बाइन हो जाते हैं और कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, और रियली साइकोसिस के साथ भी मतलब कॉम्बाइंड हो जाते हैं. नाउ इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, in the cure of venereal disease 3 states are to be distinguished. तो इस chronic disease में venereal disease का cure में 3 टाइप का स्टेट के बारे में हैनीमैन ने कहा. नंबर 1, when syphilis is still alone and attended with its associated local symptom, the chancre, or at least if this has been removed by external applications, it is still associated with the other local symptom which in a similar manner acts vicariously for the internal disorder, the bubo. तो नंबर 1 पॉइंट इज़ दैट कि जहाँ पे सिफिलिस सिर्फ अकेला सिफिलिस मियाज़म ही है और उसके साथ जो है कुछ लोकल सिम्टम है, और जहाँ पे एक्सटर्नल एप्लीकेशन द्वारा रॉन्गली ट्रीटेड किया गया ऐसे शैंकर को, ऐसे कोई स्किन इरप्शंस को, तो और वहाँ पे एक देयर इज़ अराउजल ऑफ द ब्यूबो, एक ब्यूबो आता है जो कि एक एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन होता है ऑन द स्किन, एंड दिस इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ सिफिलिस. तो यहाँ पे एक द नंबर 1 पॉइंट इज़ दैट कि वेयर द सिफिलिस इज़ एलोन, और इस जगह पे इट मे बी एसोसिएटेड विद द लोकल सिम्टम ऑफ द ब्यूबो. इसका कैसे ट्रीटमेंट होगा इसके बारे में इसके बाद डिस्कस करेंगे. नंबर 2,
when it is alone indeed without any complication with a second or third miasma but has already been deprived of the various local symptoms the Sankar and the bubo. जहाँ पे सिफिलिस है अकेला ही है लेकिन उस सिफिलिस के साथ उसका जो मैनिफेस्टेशन एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन जो है ऐसा कुछ नहीं है, मतलब इट हैज़ बीन ड्रिवन इन अ इंटरनल मैनर and it is not complicated with other miasm but there is no other it is deprived the vicarious local symptom one instead of the other. ये जो vicarious होता है तो लोकल जो सिम्टम है ये लोकल सिम्टम जो सैंकर बिबो ऐसे कोई चीज़ इसमें नहीं है और सिफिलिस एलोन है. इसमें क्या मैनिफेस्टेशन है, क्या ट्रीटमेंट है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. नंबर 3 when it is already complicated with another chronic disease, जहाँ पे सोरा या साइकोसिस के साथ कोई अगर कॉम्प्लिकेशन है, कोई अगर कॉम्बिनेशन में वर्क हो रहा है सिफिलिस का, तो इस जगह के बारे में बोला है. तो इट इज सोरा ऑलरेडी डेवलप while the local symptom may either be yet present or may have been removed by the local application. So this is a condition here it is written that the Sankar appears after the impure caution. कैसे ये चीज़ शुरुआत कैसे होता है, तो पहले हम लोग ये देखते हैं. हैनीमैन सर ने ये कहा कि 3 टाइप का कंडीशन हमको सिफिलिस में मिलेगा, जहाँ पे सिफिलिस है और सिफिलिस के साथ लोकल सिम्टम्स और ब्यूबो है. जहाँ पे दूसरा पॉइंट ये हो गया कि जहाँ पे सिफिलिस है और कोई लोकल सिम्टम नहीं है, और तीसरा पॉइंट ये हो गया कि सिफिलिस जहाँ पे सोरा या दूसरे मियाज़म के साथ कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस में है. तो सबसे पहले हम लोग अब इधर इस जगह पे आते हैं कि ये जो सिफिलिस है, सिफिलिस का शुरुआत कैसे हुआ. तो द सैंकर अपीयर्स आफ्टर एन इम्प्योर क्वेश्चन. ये जो सैंकर है इट इज़ अ टाइप ऑफ स्किन इरप्शन एंड अल्सरेशन which is the primary manifestation of syphilis, what we say, and we get this primary manifestation in aphorism number 80. The Sankar appears after the impure coition unusually between the 7th and 14th days. Very very important. impure coition हुआ, कोई impure sexual intercourse हुआ, उसके बाद एक शैंकर का appearance होता है and ये कितने दिन में होता है, 7th and 14 days. Rarely sooner or later, mostly on the member infected with the miasma. ठीक है, तो इनमें ऐसे सैंकर डेवलप होता है और किस टाइप की इरप्शंस होता है ये इसके बाद लिखा हुआ है. फर्स्ट एज ए लिटिल पास्ट्यूल, एक पास फॉर्मेशन होता है छोटा सा, एक देयर इज अ ग्रोथ विथ पास which changes into an impure ulcer with raised borders and stinging pains which if not cured remain standing on the same place during man's lifetime, only increasing with the years, while the secondary symptom of the venal disease syphilis cannot break out as long as it exists. तो क्या हुआ, वेरी सिंपल है. इम्प्योर क्वेश्चन हुआ 7 दिन से लेकर 14 दिन के अंदर जो है कि एक वेनरल सैंकर, एक स्किन इरप्शन डेवलप हुआ. कैसे डेवलप होगा, पहले एक छोटा सा पास्ट्यूल फॉर्मेशन होगा और धीरे धीरे एक अल्सरेशन फॉर्मेशन होगा विथ रेज्ड बॉर्डर होगा एंड देयर इज अ पेन इज ऑल्सो देयर, स्टिंगिंग पेन रहेगा. अगर इसको तरीके से ट्रीटमेंट ना करें तो ये ज़िंदगी भर जो है उस आदमी के साथ रहेगा, और जब तक ये रहेगा, ये प्राइमरी मैनिफेस्टेशन रहेगा, तब तक कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं आएगा. इसी पेज में इस जगह में ये लिखा है कि ऐसे कंडीशंस को ट्रीटमेंट करने के लिए द एलोपैथिक फिजिशियन डिस्ट्रॉयज द सैंकर. तो जनरली क्या होता है कि हम सब लोगों में से एक आइडिया है कि अगर कोई स्किन इरप्शंस होता है या कोई अल्सरेशंस होता है, जितना जल्दी हो ये अल्सरेशन को क्लियर किया जाए, उसी को हम क्योर मानते हैं, जबकि वो नहीं है, जो कि ऊपर से एक्सटर्नल एप्लीकेशन द्वारा या बाय मीन्स ऑफ कोरोडिंग, कॉटेराइजिंग एंड डेसिकेटिंग सब्सटेंसेस, ऐसा कुछ केमिकल्स द्वारा ये सैंकर को, ये अल्सरेशंस को जब ख़त्म किया जाता है, जो ऊपर से ख़त्म होता है, तब क्या होता है कि ये और ऊपर में नहीं रहता. ये क्या होता है कि द डिजीज डिस्क्रेसिया, दिस miasm, it is getting the body is getting more and more infected by this miasm, as because this has been driven inward up due to the this type of wrong treatment, wrong external treatment by cauterization, by this type of desiccating agents, etc. So in this condition the syphilis is becoming more and more dangerous within the body. कैसे होता है? We see that the allopathic doctor
destroys in his blindness, next पेज में लिखा है एक जगह, through local application the vicarious external symptom the Sankar ulcer, इस Sankar ulcer को हैनीमैन ने vicarious external symptom बोला। किस लिए बोला? vicarious का मतलब होता है कि एक जगह जो प्रॉब्लम है इसका प्रॉब्लम दूसरे जगह इंस्टेड ऑफ दूसरे जगह मैनिफेस्टेशन हो रहा है। तो इस बॉडी के अंदर सिफिलिस का जो म्याज़मा है ये पूरा बॉडी के अंदर है, और इस बॉडी का इस सिफिलिटिक म्याज़मा का जो व्हाट वी कैन से दैट द मैनिफेस्टेशन और द डायरेक्शन इज गोइंग फ्रॉम विद इन टू आउटवर्ड्स इन दिस मैनर, इट इज expressed as the skin eruption as a Sankar in the external part. तो this is called the vicarious Sankar, the Sankar ulcer. Now, which is a kind of which kind nature intend for the alleviation of the internal extensive venereal general disease. तो internal disease को कम करने के लिए नेचर के द्वारा ये externally ये manifest होता है, या external direction में ये जाता है। लेकिन एलोपैथिक फिजिशियन का इस टाइप का उस समय का जो बताया गया है हैनीमैन ने, उन्होंने जो बताया कि दे आर डिस्ट्रॉइंग फ्रॉम, ये ऊपर से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और क्या होता है कि ये अंदर से डिस्ट्रॉय करने का नहीं सोचते, ऊपर में कोई ना कोई चीज़ को अप्लाई करके इस अल्सर्स को कम्प्लीटली ऊपर से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। और इधर क्या होता है, इस कारण से क्या होता है, यू सी दैट इन ऑर्डर टू हेल्प इन सच ए केस द एलोपैथिक फिजिशियन, स्लाइड में देखिए, द एलोपैथिक फिजिशियन डिस्ट्रॉयज दिस सैंकर बाय मीन्स ऑफ कोरोडिंग, कॉटराइजिंग एंड डेसिकेटिंग सब्सटेंसेस wrongly conceivable to be a more arising merely from without through a local infection, but holding it to be a merely local ulcer. तो ये लोकल अल्सर्स को मतलब ऐसे समझते हुए इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। सच ऑल्सो इट इज़ डिक्लेयर टू बी इन देयर राइटिंग्स। तो इन्होंने इसी मतलब इसका जो एक्सप्लेनेशन लिखा गया ये ऐसे लिखा गया, दिस आर द लोकल अल्सर्स एंड दिस शुड बी डिस्ट्रॉयड फ्रॉम आउटवर्ड। दे फॉल्सली सपोज, और हैनीमैन ने कहा कि ये गलत है, उनका जो आइडिया ये रॉन्ग है, दैट व्हेन इट अपीयर्स नो इंटरनल वेनल डिजीज इज एज येट टू बी थॉट ऑफ, so that when locally exterminating the Sankar, they suppose that they remove all the venereal disease from the patient at once. तो उनका ये सोच है कि जब ये रिमूव करते एक्सटर्नली तो ये अंदर का सारे जो डिजीज़ को ये रिमूव कर देते हैं, ये उनका सोच है, जबकि ये इट इज़ रॉन्ग। तो इसमें होता क्या है कि व्हाट वी आर जस्ट रीडिंग फ्रॉम दिस पेज कि जो वेनरल मेलोडी होता है, द सैंकर होता है, पेनफुल सब्स्टिट्यूट द ब्यूबो विच हैसेंट्स onward to suppuration, and when the allopath, as is usually the case, also drives out this bubo through his injurious treatment, then nature finds itself compelled to develop the internal malady through far more troublesome secondary ailments through the outbreak of whole chronic syphilis, and nature accomplishes this, though slowly, frequently, not before several months have elapsed, but with unfailing certainty. Instead of assisting, therefore the allopath does injury. तो इन्होंने कहा, हैनीमैन सर ने कहा कि जब एलोपैथ फिजिशियन एलोपैथिक ट्रीटमेंट द्वारा ये ऊपर से ठीक करने की कोशिश किया जाता है, तो ब्यूबो को जैसे या तो कॉटराइज कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है ऊपर से, तो सिफिलिस बाहर जाने का रास्ता उनको नहीं मिलता। इंस्टेड ये होता है कि ये और भी ज़्यादा खतरनाक रूप लेता है और उनका सेकेंडरी एलिमेंट्स आता है। सो वी आर गेटिंग द सेकेंडरी एलिमेंट्स ऑफ सिफिलिस ड्यू टू द रॉन्ग एंड सप्रेसिव और पैलिएटिव ट्रीटमेंट ऑफ एलोपैथी, एंड देयर इज इसके लिए समय लग सकता है। बाद में जो है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन में डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस दे सकते हैं, देयर डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस ऑफ सिफिलिस, व्हाट यू कॉल द सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन ऑफ सिफिलिस, एंड ये अनफेलिंग सर्टेनिटी ये होना ही है, ये 100% जो है ये और डेंजरस रूप ले लेता है, और इसके लिए हो सकता है कोई समय लगे, 7-8 महीना समय लगे, मतलब पेशेंट को पता ही ना चले कि ये जो चीज़ आ रहा है अभी जो कि सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन ऑफ सिफिलिस है, इसका कारण रॉन्ग ट्रीटमेंट ऑफ द एलोपैथ बाय लोकल एलिमेंट्स जो है, इसके जो ट्रीटमेंट दिए थे एलोपैथिक फिजिशियन द्वारा, इस कारण से ये हो रहा है, ये पेशेंट को समझ में ही नहीं आता।
John Hunter says, he was a great surgeon by that time, Sir John Hunter. Not one patient out of 15 will escape syphilis if the chancre is destroyed by mere external applications. And in another passage in his book, he says the result of destroying the chancre ever so clearly, and even on the first day of its appearance, this is affected by local application and always the consequent outbreak of syphilis. तो एक सर्जन इन्होंने भी ये चीज़ बता रहे हैं कि अगर हम एक्सटर्नली इसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं तो ऑब्वियसली इसमें कोई सिफिलिस का आउटब्रेक होगा. So we can see that in the another page where next जो 2 पेज है ये आप पढ़ते जाएंगे तो आपको यही मिलेगा कि how much injurious is that the treatment of the allopathic physician. Now let us come to the next step. So in this first simple state and simple cure, when the chancre or the bubo is still present and there is no complication with a developed sora, हम लोग 3 पॉइंट्स देखे थे एकदम स्टार्टिंग में कि सिफिलिस है उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है लेकिन लोकल एप्लीकेशन मतलब लोकल मैनिफेस्टेशंस है साथ में. ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि सी दैट आई हैव इंडीड इन द सेकेंड एडिशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ मेट्रिया मेडिका प्यूरा में हैनीमैन ने लिखा है डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ प्योर सेमी ऑक्साइड ऑफ मर्करी एंड आई स्टिल कंसिडर दिस टू बी वन ऑफ द मोस्ट एक्सेलेंट एंटीसिफिलिटिक मेडिसिन. तो हैनीमैन ने एंटीसिफिलिटिक मेडिसिन एंड द मोस्ट एक्सेलेंट एंटीसिफिलिटिक मेडिसिन किसको बोला है? सेमी ऑक्साइड, pure semi oxide of mercury, which he has described in the second edition of the first part of Metria Medica Pura. Very important for us. तो ऐसे कंडीशन में जब हम लोग देखते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा तो द एप्लीकेशन ऑफ सेमी ऑक्साइड ऑफ मर्करी इन अ होम्योपैथिक मैनर इट विल एक्ट एज अ एंटी माइजमेटिक एंड इट विल कंप्लीट द ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस. सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि ये जो सिंपल स्टेट जो है ऐसे कंडीशन में इसी पेज का नीचे लास्ट स्लाइड में इसी पेज का नीचे वाला पोर्शन देखा जो कि मर्करी को बोला गया है और इधर कोई कॉम्प्लिकेशंस कोई दूसरा मैजम के साथ नहीं है, सिर्फ एक लोकल मैनिफेस्टेशन के साथ सिफिलिस है. नेक्स्ट देखते हैं. नाउ द सेकेंड स्टेट in which, as mentioned above, syphilis may be treated is the rare case when the otherwise healthy person affected with no other chronic disease and thus without any developed sora has experienced his injudicious driving away of the chancre through local application affected by an ordinary physician in a short time and without attacking the organism overmuch with internal and external remedies. Even in such a case, as we have not yet combat any complication with sora, all the outbreak of syphilis, all the outbreak of secondary venereal disease may be avoided and the man may be freed from every trace of venereal miasma if we continue this page, venereal miasma through the before mentioned simple internal cure affected by like dose of the above mentioned mercurial medicine. Through the certainty of his cure can no more be so manifestly proved as if the chancre has still been in the existence during this internal cure. तो इस कंडीशन में भी जो सेकेंड कंडीशन जो दिया गया है कि जहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशंस भी नहीं है, इस जगह पे कोई भी ऑर्डिनरी फिजिशियन द्वारा जैसे कुछ भी एक्सटर्नल इंजुडिशियस ड्राइविंग अवे ऑफ द chancre या इस टाइप का कुछ कोशिश करते, ऐसा नहीं करना चाहिए. यहाँ पे भी मर्क्यूरियल ट्रीटमेंट इन अ होम्योपैथिक मैनर ये देना चाहिए. द मेडिसिन इज मर्करी. एंड कमिंग टू द थर्ड पॉसिबिलिटी जहाँ पे सिफिलिस कॉम्प्लिकेटेड विद सोरा होता है और कोई अदर मैजम्स के साथ होता है. तो here if the syphilis is complicated with sora even while the chancre is existed, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग का जो ट्रीटमेंट है इस ट्रीटमेंट का एक प्रोसीड्योर दिया गया है. इधर भी ये कहा गया है कि लोकल सिम्टम को डिस्ट्रॉय करने से कोई मतलब नहीं है, पेनफुल एक्सटर्नल एप्लीकेशन देने से ये कोई इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होगा. हम लोग को इसमें एंटी माइजमेटिक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देना है.
देखिए एक चीज़ है, बार बार एक चीज़ कहा जा रहा है कि लोकल एप्लीकेशन ऐसे अल्सर्स में इंटरनल मेडिसिन्स दे के क्योर करना है। इफ़ वी गो फ्रॉम एफोर्जिम नंबर 185 टू 203, उस जगह में लोकल एप्लीकेशंस के बारे में बताया गया है और वहाँ पे यही बताया गया है कि द लोकल एप्लीकेशन जैसे ऑइंटमेंट लगाते हैं, कोई भी मतलब एक्सटर्नल एप्लीकेशन लगाते हैं, एक्सेप्ट सम ड्यू टू इफ एनी टाइप ऑफ इंजुरीज, ड्यू टू सम एक्सटर्नल इंजुरी, ये चीज़ छोड़ के जो जिनके मैनिफेस्टेशन के साथ इंटरनल मेडिसिन जुड़े हुए हैं वहाँ पे एक्सटर्नल एप्लीकेशन लगाना मना है। तो अगर आप लोग को किसी भी जगह में ये दिखता है कि कोई ऑइंटमेंट है, कोई ऐसा है, कॉस्मेटिक्स वैल्यू या नॉर्मली जो मेंटेनेंस ऑफ द स्किन और ब्यूटी, ये सारी चीज़ जो है दैट इज़ अ सेपरेट मैटर। लेकिन अगर कोई डिजीज़ है और इसमें कोई ऐसे कुछ मैनिफेस्टेशंस है, either in the manifestation of any type of skin eruption, वहाँ पे लोकल एप्लीकेशन देना सही नहीं है। इसके पीछे इंटरनल मैज़म रहते हैं और इंटरनल मैज़म को क्योर करने के लिए हमको इंटरनली मेडिसिन देना होगा। यहाँ पे जो है कि वी कैन सी दैट जब सोरा के साथ एक कॉम्बिनेशंस होता है तो ऑब्वियसली एंटीसोरिक मेडिसिन से शुरू करना चाहिए। इसके नेक्स्ट पेज जो है, ये जो पेज मैंने निकाला है, इसी पेज के ऊपर तरफ लिखा है कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन ज़रूरी नहीं है और इसमें जो सोरा का जो है एंटीसोरा मेडिसिन की ज़रूरत है और उसके साथ जो है कि एंटीसिफिलिटिक मेडिसिन की ज़रूरत है जो कि मार्करी है। इस पैराग्राफ में हम लोग देख रहे हैं कि देयर अराइजेस इन दिस मैनर एंड थ्रू दिस कॉम्बिनेशन व्हाट इज कॉल्ड मास्क स्पूरियस सिफिलिस एंड इन इंग्लैंड pseudosyphilis, a monster of a double disease. So the syphilis combined with another miasm can be known as pseudosyphilis, and this is also called mux spurious syphilis. What we call the mux venal disease, sometimes when it is treated wrongly in a huge amount of dose by mercurial compounds by the allopus, उसमें इसी कंडीशन से मार्क्स बेनल डिजीज़ होता है। ये भी इस जगह पे लिखा है, इस पेज से पहले वाला पेज में मार्क्स बेनल डिजीज़ होता है। वो भी मार्क्यूरियल प्रिपरेशन हमारे होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा एंटीसोरिक एंड एंटीसिफिलिटिक मेडिसिन मतलब ट्रीटमेंट से ये कम्प्लीटली क्योर हो सकता है। दिस इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये देखो इसमें लिखा है दिस मार्क्स बेनल डिजीज़, और इसमें भी मार्क्यूरियल प्रिपरेशन जो है वेनल डिजीज़ के अगेंस्ट एक्ट कर सकता है। फॉर 5 to 7 वीक्स में इसका रिजल्ट आ सकता है। एंड दिस इज़ द एंटीसोरिक मेडिसिन विच इज़ द बेस्ट फिटिंग। सबसे पहले क्या बोला था मैंने, अभी जो बोला वही इस पेज में लिखा है कि एंटीसोरिक मेडिसिन देना है। उसके बाद जो है कि मार्क्यूरियल प्रिपरेशन जो कि एंटीसिफिलिटिक मेडिसिन होगा वो देना है। सो वी आर गोइंग विद द अ वेरी वेरी क्लियर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कि जहाँ पे सोरा के साथ मतलब कॉम्प्लिकेशंस होता है तो वहाँ पे पहले सोरा, क्योंकि सोरा इज़ द मदर मैज़म, सो एंटीसोरिक मेडिसिन को शुरू में देना है, उसके बाद एंटीसिफिलिटिक मेडिसिन को देना है अकॉर्डिंग टू द प्रीडोमिनेंस इन द नेक्स्ट ट्रीटमेंट कि कोई सोरा का प्रीडोमिनेंस हो या तो सिफिलिस का प्रीडोमिनेंस हो, उस हिसाब से हमको मेडिसिन को चॉइस करना है। आपका क्वेश्चन इस मामले में ये हो सकता है कि सर यहाँ पे हम लोग सिर्फ मार्करी दे या कोई एंटी मैजमेटिक बता कोई भी मेडिसिन दे अकॉर्डिंग टू टोटलिटी ऑफ सिम्टम। ऑब्वियसली यू हैव टू गिव द मेडिसिन अकॉर्डिंग टू द टोटलिटी ऑफ सिम्टम, बट वी हैव टू कीप इन माइंड दैट ईच एंड एवरी मेडिसिन has an anti-miasmatic property, either antisoric or antisyphilitic or antipsychotic. But there are 3 medicines which Hahnemann has recommended as the king of antisora, king of antisyphilis and king of antipsychosis. What is that? Is the sulfur antisoric medicine, thuja antipsychotic medicine एंड मरकरी एंटीसिफिलिटिक मेडिसिन। तो हमको जगह जगह अगर ज़रूरत पड़े तो अगर कोई ये जो म्याज़म है इस म्याज़म को क्लियर अप करने की ज़रूरत पड़े तो हमको ये किंग ऑफ द एंटी म्याज़मेटिक को सेपरेटली अप्लाई करने की ज़रूरत है। सो व्हाट वी कैन से दैट इसमें ये जो लास्ट में थैंक यू लिखा है तो राहत मिल जाता है कि कितना ये लेक्चर चलेगा। बट वन थिंग इज़ दैट ये जो पोर्शन है, अब देखिए मैंने इस चीज़ को ना क्रॉनिक डिजीज़ में ये सिफिलिस में जो लगभग 10 पेजेस है, इस 10 पेजेस को पढ़ के इसको बताने की कोशिश किया ताकि आप भी इसी जगह से पहले पढ़ो
और करो। इसके बाद इफ़ यू गो टू एनी रेफरेंस बुक इट इज़ वेरी इजी फॉर यू कि ये देखो पहले क्वेश्चन क्या होता है कि व्हाट इज द सिफिलिस, व्हाट हैनीमैन हैज़ टोल्ड रिगार्डिंग द सिफिलिस, द क्वेश्चन यू हैव टू आंसर। आंसर इसका असाइनमेंट तैयार कभी करना है छोटा करके। What is syphilis? What has Hahnemann has remarked about syphilis and another name of syphilis? Then how or what is the starting point of the of syphilis in a human body? What are the three conditions which Dr. Hahnemann has given regarding syphilis, or what to be treated regarding syphilis? Mention the three conditions and their particular treatment. तो उसमें जो जो थ्री कंडीशंस हमने देखा और उसका जैसे जैसे ट्रीटमेंट हुआ ये हम लोग को बताना है। पर्टिकुलरली जो जब कॉम्बिनेशंस होता है तो उसमें पहले एंटीसोरिक देन एंटीसिप्लेटिक ऐसे करके आपको आंसर लिखना होगा। और एक क्वेश्चन और है, व्हाट इज़ मार्क्समैन डिजीज़, व्हाट इज़ फूरियस सिफिलिस, व्हाट इज़ सीडोसिफिलिस। अनदर क्वेश्चन इज़ दैट, इसमें आप ये भी एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि व्हाट आर द मेन, छोटा क्वेश्चन लास्ट 2 मार्क्स क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेडिसिन मेंशन्ड बाय हैनीमैन एज द किंग ऑफ एंटीसिफिलिटिक और द मोस्ट एंटीसिफिलिटिक मेडिसिन एवर। थैंक यू, वी विल मीट अगेन।